Welcome back to my channel. Today we are going to continue your topic integrals from CBSE class 12th and it is in your term 2 syllabus. Now we are going to doing today integration using trigonometric identities. So start our topic. Question number 1 is integration of cos square x dx. Second, integration of sin 2x cos 3x dx, and question third is integration of sin cube x dx. So how we use trigonometric identities to solve these integrals. So start with the solution. Question number 1. Here it is given cos square x dx under the integral sign. So as we know, formula of cos 2x in terms of cos square x is 2 cos square x minus 1. Now we can find out the value of cos square x from this formula and substitute it in the integral. So 2 cos square x minus 1. So cos square x, we can find out it as 1 plus cos 2x by 2. So substitute it. Cos square x means 1 plus cos 2x by 2 dx. Now integrate it separately. Half we can take it as outside as it is constant value, and integral of 1 dx plus half of cos 2x dx. So we find out integration of 1 is x by 2 plus cos 2x integration is your sin 2x, and the constant term is outside as division. So 1 by 2 into 1 by 2, and integration of cos 2x is sin 2x plus constant of integration as c. This is the integration of cos 2x. Now the final answer is x by 2 plus 1 by 4 sin 2x plus c. This is the answer for question number 1. Now come to the solution of question number 2. Question number 2, integral of sin 2x cos 3x dx. So start with its solution. Which trigonometric identity we use here? You can remind from the trigonometric identities we learn many formulas. ठीक है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना है? रिमाइंड, इट इज गिवन एज sin 2x cos 3x. So as we know, for sin x cos y 2 sin x cos y. ठीक है, ये फॉर्मूला रीड किया हुआ है आपने. ये किसके लिए आता था? फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin x plus y plus sin x minus 1. This is the formula for sin x plus y plus sin x minus y. So we use this formula here. Okay, x is your here 2x and y is 3x. So for sin 2x cos 3x, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा half, we can take it at right hand side, okay, and sin x plus y. X is 2x, y is 3x means sin 5x plus sin x minus y. ये half outside में ले लो, okay. Sin x minus y means 2x minus 3x. It means sin of minus x. And sin is your odd function, so we can take the minus sign outside as. So it comes out half of sin 5x minus sin x. Now integrate it. Take the integration sign. So we take the integral sign on both sides. यहाँ पर लेंगे, ठीक है, और ये dx की टर्म लिख देंगे साथ में. So in this way we can use the trigonometric identities to solve the integral here. So it comes out to be integration of sin 5x minus cos 5x over 5. And ये हाफ आपका इसके साथ भी आएगा sin x minus cos x plus
constant of integration. So the final answer is minus 1 by 10 cos 5x plus half cos x plus c. So this is the final solution for question number 2. Now come to the next question, question number 3, integral of sine cube x. How we use the trigonometric identity in question number 3. So remind the first all the trigonometric formulas for the identities used in the previous in your class 11th also. We study your trigonometric function chapter number 3 and learn many trigonometric identities there. So आपको अपना previous class का पूरा चैप्टर एक बार से रिवाइज कर लेना है फ्रॉम क्लास 11th, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग आवर इंटीग्रल्स. साइन क्यूब एक्स, यहाँ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो? अगर आप रिमाइंड करोगे फॉर्मूला ऑफ साइन 3x, ये क्या होता है आपका 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. सो you can find out the value of sin x from the formula of sin 3x. Now 4 sin cube x becomes 3 sin x minus sin 3x. Okay? 3 sin x minus sin 3x. So sin cube x finally आपके पास क्या आया? Take integral of both sides. तो ये बनेगा आपका 3 by 4 sin x dx and take this 4 here becomes 1 by 4 integral of sin 3x dx. Clear? In this way we use our trigonometric identities for solving the integrals. So the answer comes out to be integration of sin x is minus cos x, so minus 3 by 4 cos x, and this becomes minus minus plus 3 by नो ये 3 तो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, मीन्स 1/12 cos 3x plus c. So this is the final answer for question number 3. Clear? So in this way we can use our trigonometric identities for solving the integrals. Now come to the next questions. Now question number 4, integral of sine square 2x plus 5 dx. So we remind the formula of cos 2x in terms of sine square x is cos 2x equals to 2 sine square x minus 1. So the value of sine square x from here is sine square x becomes 1 minus cos 2x by 2. So using this formula in this integral we find out the value of sine square 2x plus 5 is half. You can take it outside and it becomes 1 minus cos 2x, means cos 2 and x is here 2x plus 5. Okay? And whole integral. Okay? dx. Now integrate it separately. One integration of 1 is x. So x by 2 and integration of cos x is your sin x. So it becomes minus half sine of 2x plus 5, and when we integrate the angle it becomes 1 by 4. So it becomes, take it outside, ठीक है, ये आपका डिवीजन में आता है, so 1 by 4 यही आएगा and plus constant of integration c. So the final answer is your x by 2 minus 1 by 8 sine of, ये एंगल हो जाएगा ये 2 इनसाइड में मल्टीप्लाई करने पर 4x plus 10 plus c. So this is the final answer for your question number 4. So in this way we can find out the integrals using your trigonometric identities. ठीक है, इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं. Now question number 5, integral of cos 2x, cos 4x, cos 6x. अब यहां पर हम रिमाइंड करेंगे फॉर्मूला ऑफ 2 cos x cos y. इट इज योर हाफ नहीं, सॉरी, ये आपका फॉर्मूला होता है cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, और ये हाफ को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसको आउटसाइड में कॉमनली मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे टर्म से, तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला. सो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे फॉर cos 4x cos 6x. देयरफॉर cos 4x cos 6x आपका क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ cos x प्लस वाई मीन्स 4x प्लस 6x
cos of 10x and plus cos x minus y. 4x minus 6x means minus 2x, and cos x is your even function, so negative sign doesn't matter here, so it becomes cos of 2x. तो ये वैल्यू अब हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका इंटीग्रल बन जाएगा cos of 2x, आउटसाइड में ले लिया था हमने, और ये इसको सोल्व करने पर आया तो हाफ मैंने आउटसाइड में ही रख लिया कॉमनली मल्टीप्लीकेशन में, और ये बना cos 10x प्लस cos 2x एंड होल इंटीग्रल dx। अब ये cos 2x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेपरेटली इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये बना cos 2x cos 10x dx प्लस हाफ ऑफ cos स्क्वायर 2x। अब अगेन cos 2x का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x, और यहां पर आपका अगेन हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो अगेन यूजिंग फॉर्मूला 1 इट बिकम्स, क्या बन जाएगा इंटीग्रल। सोल्व करते हैं इसको नेक्स्ट, फिर यहां पर सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है फाइनल हमारा आंसर। फर्दर इसको सोल्व करने पर ये आएगा हमारा हाफ ऑफ, अगेन हाफ टर्म मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1/4 एंड cos x प्लस वाई मीन्स cos ऑफ 12x, और माइनस करने पर ये बनेगा cos ऑफ 8x प्लस cos ऑफ 8x होल का इंटीग्रल dx। प्लस में ये टर्म थी आपकी cos स्क्वायर 2x, यहां पर भी हमने फॉर्मूला अगेन यूज किया, तो ये बनेगा 1/4 1 प्लस cos 2x, और वहां पर आपका ऑलरेडी 2x गिवन है, मीन्स 2 ऑफ 2x एंड dx। बिकॉज आपको पता है फॉर्मूला फॉर cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब इसको कंप्लीट सोल्व करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x, ये बनेगा sin 12x, और 12 यहां मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1/48 sin 12x, और यहां से आएगा ये 8 मल्टीप्लाई करने पर 1/32 sin ऑफ 8x प्लस, अब ये टर्म का करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हाफ x आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू योर dx, सो x/4 एंड अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनी आपकी टर्म cos 4x, तो ये 1/4 इंटू ये 4 आपका नीचे आएगा, और ये बनेगा sin 4x, सो 1/16 sin 4x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब x cos क्यूब x dx। सो sin square x into sin x, we can write sin cube x as multiply with cos cube x dx. Now as we know sin square x plus cos square x equals to 1, so it becomes 1 minus cos square x into cos cube x into sin x dx। ये कैसे आया, बिकॉज sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x इक्वल्स टू 1। आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है आपको कि कैसे हमने किया है, और उसका रीजन भी साथ में दिया है, सो ये अपना क्लियर रखना कि आपने ये वैल्यू कहां से सब्स्टिट्यूट की। नाउ लेट cos x इक्वल्स टू t, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे अब आगे फर्दर सोल्व। cos x को जब मैंने t लिया तो sin x डिफ्रेंशिएशन में क्या बन जाएगा, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। तो ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये वैल्यू आएगी फाइनली 1 माइनस टी स्क्वायर, cos x के प्लेस में हमने t रखा है, मल्टीप्लाई विथ t क्यूब, एंड ये क्या है माइनस dt आएगा, ये माइनस ऑफ dt। ठीक, इस तरीके से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली cos x की। ठीक है, इस इंटीग्रल में अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा आपका ये माइनस साइन यहां पर ले लो आप, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1
टी क्यूब डी टी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ टी क्यूब, तो ये T5 बना एंड माइनस टी क्यूब डी टी। ऑन इंटीग्रेटिंग ये क्या आएगा आपका T6/6 माइनस T4/4 प्लस C। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी की, क्योंकि आंसर हमें किसमें लेके आना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो फाइनल आंसर आएगा 1/6 cos ऑफ 6x माइनस 1/4 cos ऑफ 4x प्लस C। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब सबसे पहले आपको फॉर्मूला रिमाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। एज यू नो 1 माइनस योर कोस 2x इज योर 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा सिमिलरली एज 1 माइनस कोस 2x क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स का। एंड 1 प्लस कोस 2x इज योर 2 कोस स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस कोस एक्स क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ एंगल हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा राइट हैंड साइड में। एंड 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर x/2। अब ये दोनों फॉर्मूले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इंटीग्रल में। ओके, सो ये बनेगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 ओवर 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल आउट आपका, और ये डायरेक्टली क्या आ गया tan स्क्वायर x/2 dx। अब हमें सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है कि 10x होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो ये आपका आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है आइडेंटिटी इसके लिए, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सो टेन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपका 10x, ठीक है, और ये हाफ इसके अपॉन में आएगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग ये आया 10x/2 ओवर हाफ, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? अब ये हाफ आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इट बिकम्स 2 10x/2 माइनस x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? क्लियर है इसका सॉल्यूशन? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको न्यूमरेटर में गिवन है cos x, डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x। अब 1 प्लस cos x की वैल्यू आपको पता है, यहां से cos x एज cos 2x इज योर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके 4 टर्म्स में हमने इसको लर्न किया था, इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेकंड इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर x that is your 1 minus 2 sin square x, and in terms of cos square x 2 cos square x minus 1, और थर्ड था tan square x के, फोर्थ है आपका tan square x के टर्म्स में 1 minus tan square x और 1 plus tan square x। तो इसको अच्छे से लर्न रखना। सो cos x क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ एंगल हाफ हुआ तो राइट हैंड साइड में भी एंगल हाफ कर देंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब ये फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ओवर में क्या आएगा 1 प्लस cos x क्या था 2 cos स्क्वायर x/2। अब इसको सेपरेटली हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों टर्म्स को cos स्क्वायर x/2 से। तो ये फर्स्ट टर्म तो आपका बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x/2 dx, ये आएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x और tan स्क्वायर x/2 आपने प्रीवियस इंटीग्रल किया हुआ है, ये आएगा। सो आपका फाइनल आंसर आ गया यहाँ से x/2 माइनस हाफ, और इंटीग्रल ये पूरा जो वैल्यू आपने 7th क्वेश्चन में निकाली थी tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन, हम डायरेक्टली ये वैल्यू रख लेंगे यहाँ से। सो 2 tan x/2 माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आपका फाइनल आंसर बना, ये क्या आएगा प्लस x/2
और x/2 ऑलरेडी है, मीन्स x, और ये माइनस हाफ से 2 कैंसिल, सो इट बिकम्स 10x/2 प्लस c। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सो ये 2 क्वेश्चंस आज के लिए आपका होमवर्क है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के इंटीग्रेशन यूजिंग योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसी पर बेस्ड ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, तो इन दोनों को सोल्व करके देखिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क योर प्रॉब्लम। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है, इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।